forward towards our topic. What is the aim and object of education? Without answering the prime question, the policy of education cannot be determined. In the feudal days, education was considered purely unproductive, tried intellectual exercise. For the prime policy makers, education is an investment. It is a commodity for sale and purchase in market. Is education to satisfy our intellect? Should it be regarded as a commodity or merely as a means for providing livelihood? Is education merely a combination of some information? In the light of thoughts of great personalities of the human civilization, these questions are to be examined. So let us see observations on education by great personalities. Good morning everyone. I am Mayush Chikara of class 7th H and today I am going to tell you a famous quote of Siddhartha Gautam Buddha. He told that believe nothing merely just because you have been told it or you yourself have imagined it. Do not believe what your teacher tells you merely out of respect for the teacher, but whatsoever after due examination and analysis you found to be conducive to the good, the benefit, the welfare of all beings, that doctrine and cling to and take it as your guide. Thank you and have a marvelous day ahead. A very good morning to everyone. This is Aditya of class 7th H. Today I am going to tell you a quote spoken by Bhagat Singh. Any man who stands for progress has to criticize, disbelieve and challenge every item of his old faith. Item by item he has to reason out every nook and every corner of the prevailing faith. If after considerable reasoning one is led to believe in any theory or philosophy, his faith is welcomed, his reasoning can be mistaken wrong and sometimes fallacious, but he is liable to correction because reason is the guiding star of his life. Mere faith and blind faith is dangerous because it dulls the brain and makes a reactionary. A person who claims to be realist has to challenge the ancient faith. If it doesn't stand on solid reason, it crumbles down and clears space for the erection of new philosophy. Thank you. Good morning everyone. I am Hitesh of class 7th H and I am going to give you some observations of education about Netaji Subhash Chandra Bose. While we think of our national education, we are to think of another aspect, that is educational institutions should embrace her all children with sincere love like affectionate mothers. All the Brahmin, the Sudras, the member of the lower caste Chandal, the Hindu, the Muslim, the Sikh, the Parsi, the destitute should have their place in these institutions irrespective of caste, creed and religion. By Netaji Subhash Chandra. Good morning everyone. I am Preeti Chauhan of class 7H is going to tell you some observation by Mahatma Gandhi on education. The main feature of national education is that it should be free just as sun rays provide light in equal proportion. Raindrops fall on everyone. Similarly, education should be available to all. Thank you and have a nice day. Good morning everyone. My name is Aditya Kaushik and I am from class 7th H. And today I am going to tell you all about the observations by Swami Vivekananda on education. The nation develops in proportion to the rate at which education spread among the masses. The main reason for decline in India is that a handful of people enjoy the monopoly over national education and intellect. If we want to regain our glory, then one needs to spread education among the masses. Thank you. Now, our class teacher, Mr. Vijay Shankar sir, would like to say some few lines related to the topic. शुभ प्रभात छात्रों, जिन महापुरुषों के विचार अभी आप सुन रहे थे, इन सभी का ये सपना था कि हम एक ऐसा देश बनाएंगे जहां पर किसी भी प्रकार से शिक्षा का कोई शुल्क नहीं होगा, किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। आजादी आंदोलन के दौरान जिन छात्रों युवाओं ने आजादी आंदोलन में भाग लिया था, उन सब का सपना था कि हम एक ऐसा देश बनाएंगे जहां पर किसी भी प्रकार के शुल्क छात्रों से नहीं लिया जाएगा। लेकिन इस देश में आने वाली तमाम सरकारों ने हमारे शहीदों महापुरुषों के जो भी विचार थे, जो भी उनके सपने थे, उनको दरकिनार करते हुए अकूत मुनाफे के रूप में शिक्षा को तब्दील कर दिया है। आज शिक्षा एक प्रकार से मुनाफे की वस्तु के रूप में तब्दील हो गई है। हम देखते हैं कि शिक्षा भी बाजारू वस्तु के रूप में आज खरीदी और बेची जा रही है। इस प्रकार की शिक्षा की कल्पना हमारे महापुरुषों ने नहीं किया था। इस प्रकार से किसी ने सपना नहीं देखा था। इस प्रकार की सार्वजनिक सेवाएं जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है, ये जो मूलभूत सेवाएं हैं, ये निःशुल्क होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने क्या कहा था
महात्मा गांधी ने कहा था जिस प्रकार से सूर्य की रोशनी वर्षा की बूंदें किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, या हवा जब चलती है तो वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती कि कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन पैसे वाला है, कौन पैसे वाला नहीं है। ये सारे भेदभाव उनके पास नहीं होते। उसी प्रकार से ज्ञान भी एक ऐसा माध्यम है जिससे इस पूरे संसार को बदला जा सकता है। तो इसलिए इससे किसी भी प्रकार से पैसे या शुल्क नहीं लेने चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जानते हैं क्या कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि अगर एक छात्र को अपनी फीस स्वयं वहन करनी पड़े, स्वयं देनी पड़े, तो इससे घटिया कोई चीज नहीं हो सकती। तो हम बात कर रहे थे महापुरुषों की, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्लाह खां, यहां तक कि 18 वर्ष की उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले खुदीराम बोस, जिनकी मां न होने के कारण इस धरती को ही अपनी मां मान लिए थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इन सब का सपना यही था कि देश हमारा जब आजाद हो, जब आजाद देश में हमारी आने वाली पीढ़ियां सांस लें, तो वो इस प्रकार से परेशान ना हो कि उनको अच्छा ज्ञान नहीं मिला, अच्छी शिक्षा नहीं मिली। हमारे जो महापुरुषों के विचार थे, महापुरुषों की जो सोच थी कि एक स्वस्थ भारत हम बनाएंगे जहां पर सबके लिए शिक्षा मिलेगी, वो आज भी अधूरा है। आप जो आज ज्ञान हासिल कर रहे हैं, जो शिक्षा ले रहे हैं, आपको हो सकता है, लगता हो कि आपके माता पिता पैसा पे कर रहे हैं, इसलिए आपको ऐसी शिक्षा मिल रही है। लेकिन सोचिए, आपके ज्ञान हासिल करने में ये पूरा समाज आपका सहयोग करता है। आप सोचते होंगे कैसे ये समाज सहयोग करता है, तो मैं बताता हूं। जब आप भोजन करते हो तो कभी आपने सोचा हमारे देश का जो किसान इस धरती का सीना चीरकर अपने खून पसीने से सींचकर अन्न उपजाता है, वो आपको खाने के लिए मिलता है, तब आप पढ़ पाते हो, तब आप विद्यालय तक पहुंच पाते हो। जिस दिन आपको भोजन ना मिले तो आप पढ़ नहीं सकते, आपको ज्ञान हासिल नहीं हो सकता। कितना भी आपके पास पैसे हो, कितनी भी धन दौलत संपत्ति हो, उसका कोई मायने नहीं रह जाएगा जिस दिन किसान खेतों में कार्य नहीं करेगा। तो उसका योगदान मानिए कि उसने आपको खाने के लिए अन्न दिया है। आप जो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हो ना, हो सकता है जिस मजदूर ने इस कपड़े को बनाया है उनके पास कपड़े नहीं होंगे, वो कपड़े नहीं पहन रहे होंगे, लेकिन आपको ये कपड़े मिल रहे हैं, तो उसके प्रति भी हमारा दायित्व। छात्रों, आप विद्यालय में आते हो, शिक्षक आपको पढ़ाते हैं, यहाँ पर तमाम कार्य करने वाले लोग हैं, सफाई कर्मी से लेकर के हर वर्क करने वाले लोग आपको पल पल में सहयोग करते हैं। इस समय तो मान लीजिए आप विद्यालय नहीं आ रहे, वो स्थितियां ऐसी, लेकिन जब भी आप विद्यालय आते हो तो हर स्थान पर आपका सहयोग किया जाता है। आप विद्यालय आते हो तो आपको कोई छोड़ने आता है। आप जो पुस्तकें पढ़ते हो उस पुस्तक को किसी मजदूर ने बनाया होगा, और ये ज्ञान जो आप हासिल कर रहे हो ये किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, ना तो मेरी, ना तो आपकी, ना किसी की। ये सार्वजनिक संपत्ति है और हम इसको आपको पढ़ा रहे हैं, आप इसको अर्जित कर रहे हैं। मतलब कि हमारा कहने का ये है कि आप अकेले कोई चीज नहीं कर सकते। जब आपको समाज पूरा सहयोग करता है तो समाज के प्रति आपका भी दायित्व बनता है। ये समाज आपको पल पल में बढ़ने के लिए सहयोग करता है। ये समाज आपको पल पल में आपको समझाता है कि बेटा चलना कैसे। आप कहीं गिरते हो तो आपको संभालता है। तो इस समाज के प्रति भी आपका दायित्व बनता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जिस देश के छात्र नौजवान जिस देश की जनता के पैसों से पढ़ते हैं, अगर उस देश की जनता के बारे में नहीं सोचते तो मैं उन्हें देशद्रोही कहूंगा। कहने का मतलब यह है कि जब आप इस समाज के सहयोग से ज्ञान अर्जित करते हो, ये समाज आपको पल पल में सहयोग करता है, तो इस समाज के प्रति आपका दायित्व भी बनता है। कहने के लिए आपको बहुत से लोग कहेंगे कि अपना देखो, अपना करो, अपने तक ही सीमित रहो, लेकिन बच्चों ये ज्ञान बहुत ही गलत है। इस प्रकार की धारणा अपने मन में कभी भी मत बनाना कि अपना देखो, अपने तक सीमित रहो। ये हमको एक घटिया सोच की ओर ले जाता है, क्योंकि जब हम अपने तक सीमित होते हैं
तो हम इस समाज के बारे में नहीं सोचते, इस देश के बारे में नहीं सोचते। जो समाज, जो देश हमको पाल पोस कर बड़ा करता है, हमको शिक्षित करता है, हमको भोजन, पहनने के लिए कपड़े, हर चीज उपलब्ध कराता है, उसी देश के बारे में हम नहीं सोचते। ये सोच अपने मस्तिष्क में मत निर्मित कर। जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन ने कहा था कि जब भी मैं भोजन करता हूं, एक कौर उठा के अपने मुंह में डालता हूं, तो मुझे उस किसान की याद आती है जिसने इस अन्न को उगाया है। पता नहीं वो भोजन किया होगा या नहीं, लेकिन मैं कर रहा हूं। तो जो मैं अर्जित कर रहा हूं इस समाज से, उसके बदले मुझे इस समाज को देना भी कुछ होता है। तो हम अपने दायित्व से पीछे ना हटें, अपने दायित्व को पूरा करें। आज जिन महापुरुषों के सपनों के भारत की मैं बात कर रहा हूं, उन सपनों पर तो कोई कार्य किया नहीं गया, लेकिन हम सब जो भी छात्र हैं, नौजवान हैं, हमको ये सोचना होगा कि ये जो ज्ञान है किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, हमारी आपकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, ये अनादिकाल से अर्जित ज्ञान है। इसमें समाज ने सहयोग किया है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति ने सहयोग किया है, चाहे वो हमारे देश का साइंटिस्ट हो या किसी दूसरे देश का हो, सबका सहयोग है। तो सबके सहयोग से जो ज्ञान निर्मित हुआ है, जो ज्ञान का भंडार निर्मित हुआ है, उस ज्ञान के भंडार को अगर कोई खरीद फरोख्त करे, उसकी बिक्री करे, ये ठीक नहीं। आपको जब मैं चैप्टर पढ़ाता हूं, उस समय भी मैं समझाता हूं कि जो आप किताब 1 घंटे में, 2 घंटे में आप पढ़ ले रहे हो, जो साइंस की बुक आप 1 घंटे 2 घंटे में पढ़ ले रहे हो, उसे हो सकता है रिसर्च करने में, उसको बनाने में कई हजार वर्ष लग गए, इस ज्ञान को निर्मित करने में कई हजार वर्ष लग गए होंगे। तो ये जो ज्ञान आज हमारे पास है, जो ज्ञान ये हमारे पास निर्मित हुआ है, अगर इसकी कोई खरीद फरोख्त करे, इसकी बिक्री कोई करे, तो ये गलत है। और जो भी गलत है उसका विरोध करना हमारा परम कर्तव्य है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि अन्याय अत्याचार देखकर जो उसका प्रतिकार नहीं करता, वो अपनी इंसानियत को बेइज्जत करता, और ऐसा करते हुए अर्थात अन्याय अत्याचार का विरोध करते हुए जो लांछन झेलता है, प्रताड़ना सहता है, वो इंसानियत के गौरवमय आसन पर आसीन होता है। अपने शहीदों, महापुरुषों के विचारों को लेकर के आगे बढ़ना होगा। हमारे आदर्श कोई आज के एक्टर नहीं हो सकते। नायक, महानायक नाम से बहुत से जाने जाते, लेकिन वो हमारे आदर्श नहीं हो सकते। हमारे आदर्श वही हो सकते हैं जो इस देश की सरजमी के लिए, इस मिट्टी के लिए अपने खून को बहाया है, और उस मिट्टी में ही हंसते खेलते हम बड़े हुए हैं, खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं। एक इस प्रकार का माहौल उन्होंने हमको दिया है, एक इस प्रकार का हमको देश दिया है, तो उनके प्रति हमारा दायित्व भी बनता है। इस देश और समाज को आगे ले जाने में आप सभी छात्रों और शिक्षकों सबके सहयोग से ही ये समाज आगे बढ़ सकता है। इसलिए हम सभी को साथ में मिल करके इस देश को आगे बढ़ाना होगा। मैं आशा करता हूं कि मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था, आप लोग जरूर थोड़ा समझ पाए। आज मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।